जो बोधिसिया स्कूल का फाउंडर है कलकत्ता में, और मास्टर बांते हादी जो वियतनाम से आया है, मैं इन दोनों को और सब संगठनों को मेणबत्ती और अगरबत्ती जलाने के लिए और भगवान बुद्ध को पुष्प करने के लिए विनती करता हूँ। मैं आप सभी लोगों को विनती करता हूँ कि आप सब लोग हम लोग को सहायता कीजिए, हम लोग को ब्लेसिंग भी शेयर कीजिए। I kindly request you to share your blessing and to succeed the program. Sadhu, sadhu, sadhu. Now moving to Sat Buddha Parana, Sat Priya. अभी तो हमारा सब बुद्ध प्रणाम करके श्री तीर्थ में बता देंगे। सर्वप्रथम विधि है, पहले पंचांग प्रणाम करेंगे। पंचांग प्रणाम करेंगे। ओके, बुद्धां नमामि, धम्मां नमामि, संघं नमामि। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्सा अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकाभियुतो अनुत्तरो पुरुषधर्मसारथि सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवति स्वाकातो भगवता धम्मो संकीर्तिको अकालिको वार्षिको गणाय पश्चातं वेदिलाभो विमुनिति सुप्रतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सुप्रतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो ज्ञानप्रतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीप्यप्रतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं सत्तानि पुरुषयुगानि आत्मपुरुषयोगानि एष भगवतो सावकसङ्घो आमोमेयो भावमेयो अधर्मिणो अन्यवेदानो परमोत्तरं भूयन्तेतं लोकसारि। साधु साधु साधु। बुद्धं धम्मं संघं। Now we will go to inaugurations of novice hostel by Bante Bimal, founder of Boधिसिया, Kolkata, and Master Hadik and Sangha। अभी हॉस्टल में जाएंगे हॉस्टल का उद्घाटन करने के लिए बांते बिमल के द्वारा और वियतनाम के द्वारा। ऐसा भी कर सकते हैं। बिमल बांते और मास्टर हादी को
विनती करता हूँ कि 9 समय का हॉस्टल को उद्घाटन करने के 1, लिए 2, 3. साधु साधु साधु। फोटो लिया है, वीडियो कर रहा है। Listen. Pick up phone. Now अभी खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट Bante Bimal Bante और मास्टर हादिस ऑफ वियतनाम inauguration has been done. Now second step is the classroom will be open. साधु तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ विक्की समाज की तरफ से। जेवले नाही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा साधु भगवान गौतम बुद्धांचा भिक्खू संघांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। रवी सर तुम्ही जेवले नाही, फक्त चाय पिऊन आला तुम्ही। Conference. This is a conference in Burkaya. You know, first time I met you. You and me. This is all photo, very old photo. Minimum 6 years I wrote this photo. Yeah. But he organized this function. So this is in my temple. During COVID, so we do relief for the monks and nuns in my temple. 100 monks and nuns in my temple. So all the monks with the mask and all the Buddhist people give support. दमो क्लास करायचे ते रूम आहे। बंदीजींना सर्वांना मी रिक्वेस्ट करत आहे बांधते तुम्ही एक काम करो, तुम्ही सोचो ना मीडियाला और उपासक उपासिका, once again I welcome all of you on behalf of Indian Buddhist Congregation Aurangabad. Now Bhante Bimal, the founders of Bodhisattva School, Kolkata, he will give Panchashila, main 5 phrases. अभी कोलकाता से जो बड़े वाले जी आया है, जो बोधिसत्व स्कूल का जो फाउंडर है, उनका स्कूल है, वो आप लोग को कृष्ण पंचशील देगा। सब लोग हाथ जोड़ो, मेरा साथ बोलो। ओके, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। ओके, मेरा साथ ओकासा वंदामि Bante Dharatana Katan Sabba Uparada Kamado Me Bante Budhati Okasa Vandami Bante Dharatana Katan Sabba Uparada Kamado Me Bante Tadyamti Okasa Vandami Bante Dharatana Kadang Sabba Uparada Kamato Me Bante Okasa Aham Bante Tisanena Sati Pansasilam Dhammam Yachami Anugham Gatva Silam Deta Me Bhante Bodhyanti Okasa Aham Bhante Tisranena Sati Pansasilam Dhammam Yachami Anugham Gatva Silam Deta Me Bhante
Dutiampi Okasa Aham Bante Tisranena Sati Pansasila Dhammam Yachami Anadham Katva Silang Deta Me Bhante Yamaham badami dandita Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Dutiyampi buddham saranam gacchami Dutiyampi dhammam saranam gacchami Dutiyampi sangham saranam gacchami Tatiyampi buddham saranam gacchami Tatiyampi dhammam saranam gacchami Tatiyampi sangham saranam gacchami Kisaranam gahanam sampannam Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami Adinagana veramani sikkhapadam samadhiyami Kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami Musabada veramani sikkhapadam samadhiyami Suramiraya majjapamadatthana veramani sikkhapadam samadhiyami Sadhu 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 trisaranena saha Pancasilang dhammang sadhutam Suratitang tattvam appamadena silang sampadita Thank you Bhante Ji for your giving Salam position to Basa and Pasida. Is it need to sound Moita Sutra? Okay. Varga Mita Sutra. एक सूत्र बोलेंगे सब लोग हाथ जोड़ कर यहाँ Okay. Hello. Once again, I welcome all of you on behalf of Bhikkhu Sangha. Now we will give good welcome to Bhikkhu Sangha Master Bimal. यहाँ का जो मेंबर कमेटी है को मैं विनती करता हूँ कि बांधे बिमल बांधी जी को पुष्पों से स्वागत करने के लिए। मास्टर हाफिज जी को भी वियतनाम से आया है, उनको भी पुष्पों से स्वागत करने के लिए। मुझे सबका नाम मालूम नहीं जी।
I kindly request to member committee to give good welcome to Master Nibal, Master Hardin of Vietnam. And कोई भी कुछ समझ रहा है कि बुद्धानंद सुमेर ये आसाम से भी आया है, कोई आसाम से आया है, अरुणाचल प्रदेश से आया है। Thank you, sir. और बांते इंडिया बंसा के स्वागत करने के लिए और प्रज्ञा बंसा असम से भी आया है, प्रज्ञा बांते प्रज्ञा बंसा। ओके, सब लोग हाथ जोड़िए। अभी हम लोग सूत्रपात करेंगे। ओके, नाउ हम लोग अभी सूत्रपात करेंगे, 5 मिनट लगेगा। हाँ, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। एवमादिगुरुपेतं परित्रं मनामये करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदमवेशमेच्च सत्कुदुषसुदुषा सुवसुवच्चं दुर्यनातिमानि शान्तो सकुशसुवलोचा अपचिच्चो च सम्मौ करोति शान्तिन्द्रियो सनिपातो च अपगमो कुलेषु यमानुदितो चारुणं समाचारे किञ्चेन विमुपायोपावदेयं सुखेन वाक्यमिनोऽन्तो सब्बे सत्ता भवन्तु सुखे तत्ता। ये जैसे पराभूतन्ति तासावतावराभयनाभशेषा ईगाभयमन्तभमज्जीवनस्वातनं प्रतुला वये वया दिट्टा ये
sadure vasanti avidure bhuta vasambhavesi vasabbe satta bhavantu sukhitatta naparu parang nikubbeta natimayeta vyarasana padijasaya maya maya sadukha nichaya mataya kaniyam bhutam ayucaya bhuttamanoratya evam pisabbhavutesu manasam bhavaya parimanam mettam sa sabbalotasmin manasam bhavaya parimanam buddham adojatiriyanca ya sambadam abhirasapattam Itam sarang nisinno vasayano bhagavatasya vigatamindo Itam sating aditya brahmametam viharamidamau Dittim sayano padamma silavadasanena sampanno Amesu vinayagedan naijatu gabbasayam punarititi Yekena sajjavajjena suttiteya pusambada Yekena sajjavajjena sambadukka rogavaya antaraya vinasantu Ekena sajjavajjena mokute dayumangavanti Sadhu, sadhu, sadhu. So now, in Vietnamese tradition, we will pray for you, for your welfare and for your benefit. वियतनाम का भाषा से वियतनाम से आया है, उनका भाषा से भी सूत्रपात करेंगे। हाँ, आप सुनिए, हाथ जोड़कर सुनिए। Namo Sakamuni Buddha. Today, on the 20th April 2022, at the Dhamma Saga Buddha Vihara, pray the Buddha blessing on the first good health and Indian Buddhism giving to the land step by step. Namo Devi Hodogoda, Namo Devi Hodogoda, Namo Devi Hodogoda. Devi Hodogoda, Devi Damdarani, Namo Gandharaya, Namo Riyavalaya, Rupakaya, Bodhidambhavaya. Odogoya, Palamidaya, Namaradam, Yurana, Namo Namilanda, Mawariya, Valaya, Nedakasana, Namo Naranji. Tiriyanda Sanuna, Tarayiva, Dayanaga, Maya, Davarida, Abalaya, Lokadekadarayi, Rima, Buddhidam, Tatapa, Zulabagama, Riraya, Guru, Kolo, Mondolo, Sadeva, Sade, Dada, Nini, Vakaya, Jara, Mama, Maram, Nilay, Yadanana, Rasa, 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 Yalo, Amara, Lolo, An lành đêm an lành đêm ngày 6 tháng
Nam mô Tiêu Tai Giang Viết Tượng Bồ Tát Ma Tát. Sadhu sadhu sadhu. ओके, और एक बार 3 बार जोर से साधु मना। ओके, once again तथागत भगवान बुद्ध, पूजनीय भिक्षु संघ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, आदरणीय उपासक उपासिका, I welcome all of you on behalf of Indian Buddhist Congregation Aurangabad. I kindly request you to share your blessing and to cooperate with me to success your programs. मैं आप सभी लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं कि भिक्षु संघ की तरफ से, और मैं आप लोग को विनती करता कि आप लोग का ब्लेसिंग आशीर्वाद सहायता शेयरिंग कीजिए और आप लोग हम लोग को सहायता कीजिए जिससे कि प्रोग्राम सफलता हो जाए। Now I kindly request Bhante Bimal. He will deliver the motto. He came from West Bengal, Kolkata. He is the founder of बोधिचिड़िया स्कूल कलकत्ता। मैं बांते बिमल बांदे जी को अनुरोध करता हूँ कि 10 मिनट हमारे उपासक उपासिका को प्रवचन देने के लिए। ये बांदे जी है कि कलकत्ता से आया है, उनका एक स्कूल है और त्रिपुरा में भी स्कूल है, असम में स्कूल है, मिजोरम में स्कूल है, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल में जाता है, प्रवचन देता है और जगत प्रसिद्ध एक विद्वान भिक्षु है। इसलिए आप लोग बहुत पुण्यवान है, बहुत सारे भिक्षु संघ आया है। इसलिए आप लोग को विनती करता हूँ कि बांते बिमल बानी से 10 मिनट प्रवचन सुनिए। 3 बार साधु बना। Most venerable Bhikkhu Sangha, Shraddhavan and Shraddhavati Upasaka Upasika, I am sorry I cannot speak good Hindi, so for this reason I have to use English, though English is not my mother tongue and not also your mother tongue. Even then, to communicate, I have to use English language. But I cannot speak English also like English people. Anyway, you will understand, I think. So, I am very, very happy to see you here in Aurangabad, especially Master Handing from Vietnam. He invited me to come here to participate in this inauguration ceremony of Pali and Buddhist Studies School. So, I am very happy. Sangopal also invited me, Anuruddha also invited me to participate in this auspicious occasion. Really, I am very happy to see your initiative and also your energy. You are very much enthusiastic to do work for the benefit and welfare of the many people. And I am fortunate that today I could participate in the monk residence. Is it monk residence? Which we inaugurate that one? That is monk residence? Yes. Yeah. Very, very pleased. I am able to participate in monk residence opening ceremony, which was inaugurated by Master Handin and Sadhananda Bhikkhu. Yeah. So I am also happy
that to inaugurate the teaching room, Pali and Buddhism teaching room here. So it is very rare case for me. I feel honored for this reason. So, Buddha explained everything in the Mangala Sutra. If you and we minutely go through the Mangala Sutra, we can have every experience, every knowledge in that Mangala Sutra, how to be free from the suffering, layperson, and also monk, and also who practice meditation, everything in Mangala Sutra. You can see you can tell that Mangala Sutra is the masterpiece of the Buddha. So in that Mangala Sutra, says that Bahu Satchancha Sippancha Vinayesa Susikrito. This stanza. In that stanza, we can see that Bahu Satchancha Sippancha. Lot of what is called books. In any tradition, Theravada tradition, Mahayana tradition, and also other religious traditions, we can study. So if we study, then we can have knowledge, we can gain knowledge, so that everybody should study. If we study, we will know. If we study here in our home, in our room, we will know everything about literature, about philosophy, about everything in daily life. How to people make them happy. So for this reason, it is very good job. It is very good initiation to start the Pali and Buddhist studies here. In India, we have no monk teaching center, monk teaching schools. We can see in Sri Lanka, we can see in Thailand, we can see in Myanmar. So there is, in Sri Lanka, there is a Perivena or something else, I don't know. Pali, Perivena, and in Thailand also, and also in Myanmar. Myanmar, they have emphasis on Abhidhamma. Yesterday one monk came here to meet me. What is his name? Dhammajuti. He's studying Abhidhamma, which is the super philosophy in Buddhism. He knows everything. And also, I have seen that in other area, you see, Baba Saheb Ambedkar, he chose the Buddhism, and he has taken Panchasila from Myanmar monk, most venerable Chandramani Ji. So I think that Buddhism, still there are some monks in Myanmar following intact. That means from the Buddha's time to today. They are following in toto, some monks, not all.
Not all Myanmar monks, but some monks and their meditation, their tradition, and their behavior, Samanera, Shakya Dhamma, monks, Patimoksha Dhamma, etc., etc., they are following Toto. So I think that for this reason, Baba Sahib Ambedkar chose Chandramani Ji, most venerable Chandramani Ji, to take Diksha from him. We also should follow this word. Baba Sahib is the light, not only in India, but also in Asia and in the world for the downtrodden people who are suffering. To be free from suffering, he had done a lot of work for this reason. Today, we who are living here in India, we are enjoying some rights due to Baba Sahib Ambedkar. We are grateful to him. And also, today, we are enjoying human rights for Baba Sahib Ambedkar. He has done this work. So, I hope that this school, Pali and Buddhist Studies School here in Aurangabad, you are the first person, the people of Aurangabad, the Buddhists of Aurangabad, you studied here. In India, I cannot see anywhere, any place, this type of school. We the monk, only we studied Buddhism own self, not from the school. But who went to the Sri Lanka and Thailand and Myanmar, they studied there for Mali from the teachers. So I am very happy to see you to come here and to be participate in this auspicious occasion. I thank the committee who organized this one. Especially, I pray for you, for your benefit and for welfare. And just I am giving Ashirwad to you for your benefit and welfare. Thank you very much. Thank you everybody who will learn here. I request you, learn Buddhism. Here is very, very good jewel, Amrita. Amrita you will find out from the Buddhism. Without Buddhism there is nothing, no way to be free from the suffering. Only the one way, that is Buddhism. Ekayana Maggo. Only one way to be free from the suffering. So that you will learn attentively so that you can find out, you can be free for yourself, and also you can advise, you can guide the people to be free from the suffering. Thank you very much. Thank you. May all beings be happy. Sabbe sabda sukhita. Sadhu, sadhu. Thank you, Bante Bimal, for your valuable Dhamma talk. धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे उपासक बसिया को प्रवचन दिया है। आप लोगों को लगता है समझने के लिए नहीं आ रहा था इंग्लिश अंग्रेजी में, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि बांते बिमल पंडित जी ने जब बोला कि यहाँ आकर बहुत खुशी हो गया, यहाँ जो प्यारना बानिज के बांते हादिन और बांते संगपा प्यारना बानिज जी को बिमल पंडित जी को बुलाया, इसी वजह से वहाँ आया, ये बहुत खुशी हो गया। तब ऐसा पता है कि दुख से कैसा छुटकारा मिलना है,
तब जैसे बताया कि महामंगल सूत्र में आप लोग अच्छा कर पढ़ाई करने से वहाँ से दुख से छुटकारा मिलेगी। जैसे कि बुद्ध ने बताया कि बाहु सच्चान शिवंसा मतलब कैसा जीवित रहना, कैसा दुख से छुटकारा मिलना है, ऐसा करके बांधे विमल बाजी ने बताया है। जैसे कि बुद्ध का समय में कोई बर्मा का बालीजीवी जो कोई धम्म का अभ्यास किया, वो अभी तक भी धम्म का अभ्यास कर रहा है जब बर्मा का जब बालीजी लोग, लेकिन सब लोग नहीं, कोई बालीजी लोग अभ्यास कर रहा है, ध्यान साधना कर रहा है। और ऐसे भी बोला कि पंचशील जो बाबा साहेब जी ने जो चंद्रमुनि से दीक्षा लिया है, 300 वर्ष लिया है, बाबा साहेब के बारे में अच्छा बताया है। क्योंकि बाबा साहेब के द्वारा हम लोग आप लोग इतना स्टेज पर आया है, तो बाबा साहेब जी ने सभी लोग को धम्म सिखाया है, दुख से कैसा से छुटकारा मिलना है, ऐसा करके वो सिखाया है। और धम्म बिना कुछ नहीं होता, धम्म को अच्छा करके जानकारी नहीं होने से हम लोग दुख से छुटकारा नहीं मिलेंगे। इसलिए और एक बार बांधे बीरबल जी को धन्यवाद करता हूँ। अभी ना आई काइंडली रिक्वेस्ट मास्टर Bante Hadin of Vietnam. This Master Hadin is the one who is from Vietnam. He loved to develop Indian Buddhism. He loved to help Indian Buddhism. But he says that Indian Buddhism he can't develop because he doesn't know the language of India like Hindi or Marathi and many languages. Only Indian Buddhism who can develop? Indian Buddhism can develop only Indian Bhikkhu Sangha. But Master Hadin, he is ready to help Indian Bhikkhu Sangha to develop Buddhism. ये बांधे हादिन जो वियतनाम से आया है, वो हमेशा भारत में बहुत श्रद्धा है, बहुत प्यारा है कि हमारे भारत का जो बौद्ध धर्म को कैसा प्रगति करना है, यहाँ से शुरू करना है। यहाँ मैं सिखाऊंगा, कोई बातें सिखाएगा, संघ को सिखाएगा। तो ये बयान वाले सब कुछ मतलब स्पॉन्सर करेगा, जो भी प्रॉब्लम है वो भी सब सॉल्व करेगा। ऐसा करके बयान वाले जी ने हम लोग को बताया। इसलिए आप लोग भी सब लोग संघ के साथ देना चाहे, संघ से कोऑपरेट करना चाहे, संघ का द्वारा प्रोग्राम होना चाहे, तो भी धर्म को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए हम लोग आप लोग बहुत बढ़िया है, यहाँ से ही शुरू करता है। अभी बांधे विमल बाले जी भी बताया है कि जो पहले यहाँ औरंगाबाद से हम लोग शुरू करेंगे। ऐसा जो स्कूल है, संघ का स्कूल है, श्रीलंका में भी है, थाईलैंड में भी है, बिहार भी है, लेकिन हमारे इंडिया में कम है। इसलिए बयान बाले जी ने हम लोग से मीटिंग किया है कि यहाँ से ही संघ को हम धम्म सिखाएंगे। संघ पूरा भारत में धम्म प्रसार करेगा और बाहर देश में भी धम्म प्रसार करेगा। इसलिए यहाँ से शुरुआत करेंगे। नाउ आई काइंडली रिक्वेस्ट मास्टर हादिन टू डिलीवर योर धम्म टॉक। Namo Sakyamuni Buddha. At first, I want to say Joy Bin. Joy Bin. All of you repeat after me 3 times, okay? Joy Bin. Joy Bin. Joy Bin. Thank you, everyone. And the most venerable Master Bimon, the most venerable Bhikkhu Sangha, the own Dhamma brother and sister. Today I'm very happy to see all of you have very beautiful clothes. This is a very special Indian traditional clothes, and particularly all of you look out very happily. So I was very happy. We are be together to do celebration of the opening of the Buddhist course in at the Dhamma Sakam Buddha Vihara. So we knew that Buddha after enlightenment under Bodhi tree at the Bodh Gaya,
Gaya city, Bihar state in India. And he gave Dhamma talk to the human being, to everyone. And many king and lay people became a Buddhist. They support his propagation in India. And at that time, Buddhism appeared in this world. So you know, Buddhism has spread everywhere in India. And we know that I'm very happy on this occasion. I came here. I saw all the Maharashtra people. They did very big function. Particularly, they did celebration of the Dr. Ambedkar birthday 131. Everywhere in Maharashtra and in Aurangabad. So I'm very happy. So all of you did very big function here, and many Buddhist people here. So you know, actually, I came to India from first time 1995, and in 2003 I was monk in charge of in the Vinya temple in Bodh Gaya. Until 2006, I returned to Vietnam to do reconstruction for Tung Temple in Vietnam. And yearly I come here. So now I did not see many Buddhist people in Bihar state. And right now I come here. So I'm very happy to see so many Buddhist people here. Actually, all of us have been Buddhist for over 2,000 years ago, not now. Why? Because as we know that under Maurya dynasty, India had been Buddhist country, but particularly during Ashoka time, King Ashoka time. So he did propagation whole India. He established all the Buddha historical monument whole India, and he did propagation whole India, and he also did propagation to China, Myanmar, Sri Lanka, Malaysia, Vietnam, almost Asian country, and almost all the Asian country became a Buddhist country 4,000 years ago already. But we know all the Asian country, became a Buddhist Buddhist country 4,000 years ago. But all the Buddhist country came from India, and we are Buddhist for thousand years ago. So some problem. We should keep our mouth. We not allowed to talk about the Dhamma. So now, Dr. Ambedkar, he reopened our mind. He knew that Indian people have a Buddha in the mind already for 1,000 years. And now he reopened our mind. And many Maharashtra Buddhist people worship the Buddha, pay respect to Buddha, and become Buddha. And so everyone, we are in the people,
you should be happy and proud of the Buddha, because the Buddha, he is very famous in the world. And almost people worship the Buddha, pay respect to Buddha. And we know that Buddha is an Indian people. So you know, Buddha, he focused on the education for human being, particularly Sangha. And Dr. Ambedkar, he all follow Buddha's step. He also reopened Buddhist college in Maharashtra. So today, we also follow the Buddha's step. We focus the education for the Buddhist people. If we are Buddhists, we don't know anything about the Dharma. We are not real Buddhists. We do not have an ideal belief. So, and also we focus to the Sangha. Today we open the Buddhist class. It means we give good education for the monks and for the novices here. And from here, we develop Buddhism in Aurangabad. And we develop Buddhism in another state in the future. So I very appreciate Bhante Sanghapala during Delta COVID-19, very serious situation. But he did complete two construction, novice hostel and teaching hall. So I think we are all give a lot to him. And I would like to see, they say thank you on the Vietnamese Buddhists in overseas, Vietnam and overseas, and all the trustees and all the local Buddhists have a support. Triple Champ have a support. Sangha particularly have a support. Bhante Sanghapala to complete beautiful temple in Dhamma Saga Buddha Vihara. And once again, I want to thank you, Master Bimol. He gives our power in this function. And thank you all the monks, have on all of you have coming and to join in big function today. Thank you, and I praise Buddha, I pray Buddha blessing Master Bimol have a long life, good health, long life, and all of you happy family, and good luck to all of you. Thank you. Thank you. Okay, sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Master Harding, for your valuable speech और valuable Dhamma talk. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में। ये बानी जी जो बताया कि ये वियतनाम से है, ये यहाँ आकर बहुत खुशी हो गया। तब उन्हें बताया कि जब भगवान बुद्ध ने सभी को गरीब या धनी, राजा, रानी, भिक्षु, संघ सबको मतलब धम्म का प्रवचन दिया है, और बाबा साहेब के बारे में भी बताया है। तब जो राजा अशोक, जो किंग अशोक राजा हमारे भारत में धम्म का प्रचार किया है, श्रीलंका में, वियतनाम में और आदि देश में जो अशोक राजा ने धम्म का प्रचार किया है। और ऐसा भी और बताया कि जो यहाँ से जो जब भिक्षु संघ को धम्म सिखाया जाएगा, यहाँ से पूरा भारत में ऐसा सिखाया जाएगा धम्म, इसलिए आप लोग अच्छा करके आचरण करने से बताया है। और ऐसे भी जो बताया है कि जो बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को फॉलो किया है, बुद्धिज्म को फॉलो करके इतना वो महापुरुष बन गया। और जो बड़े पांडे जी को बांधे विमल पांडे जी आया है, जो कलकत्ता से आया है, तो उनका भी विश किया, तो दुआ किया उनका निरोगी हो जाए, और आप लोग भी सभी लोग को निरोगी हो जाए। और उनको भी थैंक यू दिया है कि संगोपाल पांडे जी को थैंक यू दिया है, धन्यवाद दिया। और वियतनाम के
बहुत उनका बहुत भिक्षुणी संघ है और उपासक उपासिका है, और बाहर देश में बहुत जर्मनी बहुत बाहर देश के और प्यारना महाराज को सेवा किया, वो सेवा से तो यहाँ आया है, जो स्पॉन्सर किया जो कोर्सा से वो यहाँ है, सबको मतलब थैंक यू दिया और आज पर लोग 3 बार साथ बना। Now next I request to Bante India Bangsa from Saranath। मैं बांते इंडिया बंसा को विनती करता हूँ कि वह सरनाथ से आया है कि 10 मिनट प्रवचन देने के लिए। आपका सबका मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए। हाँ, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को 3 बार प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष इनागुरेशन सेरेमनी ऑफ पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज स्कूल, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु विमला महाथेरो भंते जी, पूजनीय भिक्षु वियतनाम भंते जी और पूजनीय भिक्षु संघ सामनेरगण, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथम मैं कुशीनगर से आया हूँ, सबको पता है, और कभी सारनाथ कभी श्रावस्ती ऐसे बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए और ढेर सारे दुख चिंताओं से मुक्त पाने के लिए ढेर सारे उन्होंने उपदेश दिए। तथागत बुद्ध एक उपदेश में ऐसा भी कहते हैं, अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमीयन्ते ये पमत्ता यथा मदा। अपमादो अमत पदं, ये अप्रमाद होना एक तरह से अमृत प्राप्त करना है, और प्रमाद होना एक तरह से मृत्यु को प्राप्त करना है। अप्रमाद बोले तो हमेशा सजग रहना, सचेत रहना, स्मृति रहना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। हमेशा अपने कर्म के प्रति सजग और सचेत रहना। जितने भी अकुशल है, गलत है, उससे दूर रह के कुशल पुण्य कार्य में आगे बढ़ना, अप्रमादी होना। और जो व्यक्ति अप्रमादी होता है उसे अमृत प्राप्त होता है। अमृत मतलब सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त होता है। मगर जो व्यक्ति इसके ठीक अपोजिट प्रमादी होता है, बेहोशी होता है, वो पाप भी करता है और जोरों शोरों से करता है, शरीर से करता है, वाणी से करता है, मन से करता है, ऐसे व्यक्ति जी के भी मरे समान है। हाँ? इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति प्रमादी है वो जी के भी मरे समान है, और जो अप्रमादी है वो मर के भी अमर समान है, हमेशा जीते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में मागंदिया वो राजा के पत्नी होके महारानी तक बन गया, मगर हमेशा दूसरों के प्रति द्वेष क्रोध रख रख के केवल उसने बदला लेने में,
द्वेष ईर्ष्या करने में भी सारा जीवन व्यतीत किया। श्यामावती महारानी प्रमुख 500 लोगों को तो एक ही जगह पे जला के मार दिया। इतना द्वेष, इतना क्रोध, ऐसे व्यक्ति जी के भी मरे समान है। और इधर श्यामावती महारानी जब तक जिए तथागत बुद्ध के वाणी सुन के धम्म को समझ के अभ्यास करते करते जिए, सबके प्रति मैत्री करुणा रखते रखते जिए। जो अपने हैं उन लोगों के प्रति भी मैत्री, जो अपने नहीं है उन लोगों के प्रति भी मैत्री, और जो हमें या खुद को मारने वाले हैं उन लोगों के प्रति भी मैत्री करुणा रखते रखते जिए। वो मर गए फिर भी मैत्री रखते रखते जिए, तो वो मर के भी जी रहे समान है। वो मरने के बाद भी अच्छे से सुगति में जाता है। तो पहला, हमें अप्रमादी होना चाहिए, होश रखना चाहिए, स्मृति रखना चाहिए। हम शरीर से क्या कर रहे हैं, हम वाणी से क्या बोल रहे हैं, और हम मन से क्या सोच रहे, ये हमेशा याद रखना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, तुम में ही किचंग आतपो अखा तारो तथागता। करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। तथागत बुद्ध केवल राह दिखाता है, मार्ग दिखाता है। आप लोगों को अमावस्या का रात पता है ना? अमावस्या का वो रात जहां आकाश में चंद्रमा नहीं रहता और आजो बाजो एक भी लाइट नहीं रहता, तो इतना अंधेरा कि सामने क्या है कुछ दिखाई नहीं देता। और ऐसे समय में अगर हमें कहीं भी जाना हो तो कितना रिस्क है। सामने क्या है कैसा है कुछ भी पता नहीं, कभी भी दुर्घटना हो सकता है, कभी भी वहां उसका जान जा सकता है। वैसे अंधकार, ऐसे अंधकार में एक छोटा सा दिए हो, टॉर्च लाइट हो मिल जाए तो सामने स्पष्ट दिखाई देता है। अरे यहाँ तो भीड़ है, यहाँ तो बहुत डेंजर खड्डा है, और यहाँ तो दीवार है, सब चीज अच्छे से दिखता है, और कहाँ रास्ता है कहाँ नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, वो मालूम पड़ता है। वैसे ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन अच्छे मार्ग पे चले, दुख मुक्ति के मार्ग पे चले, उसके लिए अच्छे से अच्छे उपदेश दिए हैं। उन्होंने दुख के विषय में भी बताया है, दुख के कारण तृष्णा के विषय में भी बताया है, दुख मुक्त निर्वाण के विषय में भी बताया है, और निर्वाण प्राप्ति का जो मध्यम मार्ग है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो शील समाधि प्रज्ञा है, उसके विषय में भी तथागत बुद्ध ने बताया है। न केवल तथागत बुद्ध ने बताया, उस मार्ग पे चल के तथागत बुद्ध ने परिपूर्ण रूप से दुख मुक्त प्राप्त किया। और न केवल तथागत बुद्ध ने बुद्ध के उपदेश सुन के अनगिनत भिक्षुनियों ने, उपासक उपासिकाओं ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया। श्रोतापट्टि, सकिटागामी, अनागामी, अरहत। इसका मतलब अगर हम भी तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम भी दुख मुक्त हो सकते हैं। बस करना जरूरी है, वो मार्ग पे चलना जरूरी है। अभी हम कितना भी बुद्ध गया के विषय में जाने समझे, कितना भी बुद्ध गया, अच्छा हम ऐसे ट्रेन से भी जा सकते, ट्रैवल से भी जा सकते, प्लेन से भी जा सकते, पाई भी जा सकते, पैदल से भी जा सकते, सब मालूम किया, मगर यहाँ बैठे बैठे सिर्फ प्रार्थना करते रहे, स्तुति करते रहे, गुणगान करते रहे कि भगवान हमें बुद्ध गया पहुँचाए, बुद्ध गया पहुँचाए, बुद्ध गया पहुँचाए। क्या तथागत बुद्ध प्रसन्न होके हमें बुद्ध गया पहुंचा देगा? क्या तथागत बुद्ध प्रसन्न होके अरे बहुत ही श्रद्धावान है, चलो मैं बुद्ध गया यहाँ ला के दर्शन कराता हूँ, क्या ला के देगा? क्या
नहीं ना। वैसे ही तथागत बुद्ध भी केवल मार्ग दिखाने वाला, रास्ता बताने वाला पथ प्रदर्शक है। बुद्ध कोई मुक्तिदाता नहीं है। इसलिए हमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को समझना है, महसूस करना है और परिपूर्ण रूप से अभ्यास करना है, तब जाके हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, बिना इसके नहीं। एक बार तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आता है और पूछता है कि भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, इतना अच्छा उपदेश, दुख और दुख मुक्ति के बातें बताता है कि ऐसा लगता है कि आपके उपदेश सुन के सुनने वाले सारे उपासक उपासिकाएं, सारे भिक्षु भिक्षुणी दुख मुक्त हो गए होंगे, सबके सभी दुख मुक्त हो गए होंगे। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, हे उपासक, सारे लोग दुख मुक्त नहीं होते। उस समय वो उपासक कहते, आश्चर्य भगवान, आप जैसे बताने वाले तथागत बुद्ध हो, आप जैसे समझाने वाले बुद्ध हो, और लोग दुख मुक्त न हो, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? तो उस समय तथागत बुद्ध उनको अच्छे से समझाते हैं, उनको प्रति प्रश्न करके समझाते हैं कि उपासक ये बताओ आप कहाँ से आए हो? तो वो कहते नहीं, मैं श्रावस्ती में ही रहता हूँ। अच्छा ठीक है, श्रावस्ती में रहते हो, मगर कहाँ से आके यहाँ रहे हो? तो कहते हैं हमारे पहले पुरखा जो है वो राजगिरी में रहते हैं, मगध के राजगिरी में। अच्छा, तो फिर श्रावस्ती से राजगिरी तक जाने का रास्ता पता है क्या? तो कहते हैं अभी भी हमारे वहाँ बहुत सारे बंधु बांधव है, हमारा तो आने जाना रहता ही है, चलता ही है, इसलिए सारे रास्ता पता है, एक एक रास्ता पता है। तो बुद्ध पूछते हैं, अच्छा तो कोई मित्र हो, बंधु बांधव हो, ये मालूम हो कि तुम राजगिरी से आए हो, तो तुमसे आके ये प्रश्न करते हैं कि नहीं कि श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता कैसा है? हाँ, पूछने आते, तो फिर तुम बताते हो क्या? बहुत अच्छे से बताता हूँ कि यहाँ से ऐसे जाना है, वैसे जाना है, वहाँ जंगल आएगा, वहाँ तालाब आएगा, वहाँ बहुत बड़ा पेड़ आएगा, वहाँ गांव आएगा, सब अच्छे से राजगिरी तक पहुँचने का रास्ता बता देता हूँ। तो बुद्ध पूछते हैं, उपासक अब मुझे ये बताओ, जितने लोगों ने भी तुमसे राजगिरी जाने का रास्ता पूछा, क्या सबके सब राजगिरी पहुंचा क्या? तब वो उपासक कहते हैं, भगवान ऐसा कैसे संभव है? कोई रास्ता पूछे और वो राजगिरी पहुंचे, ऐसा तो होता नहीं। जो व्यक्ति ने मेरी बातें अच्छे से सुना, राजगिरी जाने का रास्ता मालूम किया और वहां जब तक नहीं पहुंचे तब तक वहां चलता रहा, वही व्यक्ति राजगिरी पहुंच सकता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक मैं भी तो यही बता रहा हूँ, जो भी उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुनने के लिए आते हैं, जो व्यक्ति अच्छे से धम्म को सुनता है, समझता है और जब तक दुख मुक्त नहीं होता तब तक अभ्यास करता है, वही व्यक्ति दुख मुक्त हो सकता है, वही व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। केवल धम्म देशना सुना और चले गए, या धम्म देशना सुना और चले गए, और धम्म देशना सुन के उसने अभ्यास ही नहीं किया, तो कहाँ मार्ग फल प्राप्त होगा? और अभ्यास करके भी थोड़ा अभ्यास किया, फिर खूब बोर हो लागले, नंतर करूया, ऐसा करके बोर हो गया करके छोड़ के गया, तो वो कहाँ से दुख मुक्त होगा? इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो उपासक उपासिकाएं, जो भिक्षु भिक्षुनी तथागत बुद्ध के उपदेश को अच्छे से सुनेंगे, जानेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे और परिपूर्ण होने तक अभ्यास करेंगे, वही व्यक्ति दुख मुक्त हो सकता है, मार्ग फल प्राप्त हो सकता है और जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए ज्यादा उपदेश नहीं करूंगा कि मैं
यही कामना करता हूँ कि संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सभी लोग हम तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जाने। महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम पे इतना उपकार किया कि जीवन में इतना अच्छा धम्म की दीक्षा दिया, तो वो धम्म को हम अच्छे से जान सके, पहचान सके, धम्म की बातें सुन के अभ्यास करके ये दुर्लभ, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके और सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग विमुक्ति सुख निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए और फिर एक बार यहाँ जो पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज स्कूल संचालन हो रहा है, इसके लिए भी खूब खूब शुभेच्छा, अभिनंदन और उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति का कामना करते हुए ये छोटा सा कामदेशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगल। साधु साधु साधु। Thank you, Bhante Jabansa, for your valuable Dhamma talk. Now I kindly request Bhante Rahul from Aurangabad to deliver for 5 minutes. Bhante Rahul जी को अनुरोध करता हूँ कि 10 मिनट धम्म देशना दीजिए। पचेरित्वा ब्रह्मचर्या अलधा यौवनेन धनं जिन कोचाव जायती खिनमच्छेव फलने। हे वचन तथागताच्या मुखामधून निघालेलं आहे। आज आपण सर्वजण येथे पाली आणि बुद्धिझम हे जे काही स्कूल निर्माण करण्यासाठी जो पुढाकार घेतला पूजनीय भंते संघपालजी, ही जी संकल्पना होती ती आमचे जयंत बोधीजी आणि त्यांनी मुंबईला जाऊन शाळेचं परमिशन सुद्धा काढलं होतं, ते 2-4 रूमा सुरू केल्या होत्या, परंतु काही कारणास्तव ते तसंच पडून राहिलं। बंतेजीनं सुरू केलं। ही जी पाली हा शब्द सुद्धा कधी आपण ऐकला नव्हता किंवा आपल्या कानावरही शब्द पडलेला नव्हता पाली। आणि जे विद्यापीठामध्ये जे पालीचे जे काय आता बरेचसे लोक MA करत आहेत, MPhil करत आहेत पालीमधून, बुद्धिझम मधून शिकत आहेत, तर ही जी संकल्पना आहे विद्यापीठाला मिळाली किंवा आपल्या कानावरती शब्द पडले, याला जाणणं फार गरजेचं आहे। धर्मानंद कोसंबी कोलकात्याच्या विद्यापीठामध्ये शिकवायचे पाली, तर त्यांना असं वाटत होतं की महाराष्ट्रामध्ये पालीचा प्रचार झाला पाहिजे, लोकांच्या कानापर्यंत पालीचे शब्द पोहोचले पाहिजे, धर्मानंद कोसंबीजींना वाटायचं। ते मुंबईला आले आणि मुंबईला आल्याच्या नंतर जे काही राज्यपाल होते त्या राज्यपालाला भेटले आणि म्हणत पाली हा विषय विद्यापीठाला लागू करावा, त्यांनी निवेदन दिले आणि निवेदन दिल्याच्या नंतर पाली हा मुंबईमध्ये जे मुंबईचं विद्यापीठ होतं तिथं हा विषय विद्यापीठाने लागू केला। मुंबईमधून औरंगाबाद अनेक जे काही विद्यापीठ आहेत तिथं पाली हा विषय जे काही लागू केल्याच्या नंतर आजही बरेच विद्यापीठ आहेत तिथं पाली हा विषय नाही, कॉलेज असतील कॉलेजांनाही पाली हा विषय नाही, शाळेतही नाही। Thank you, Bhante Rahul, for your valuable speech, for the great speech in your language. Our time is very short. Now I kindly request the Dhammasagar Buddha Vihara Trust, the Upasak पत्रकार जी को मैं विनती करता हूँ कि 5 मिनट बोलने के लिए। ये हमारे बुद्ध विहार का मेंबर है, 5 मिनट बोलिए।
जगाला शांतीचा आणि भारताला क्रांतीचा संदेश देणारे महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, दलित शोषित समाजाचे कैवारी, भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि पाली अँड बुद्धिस्ट स्टडीज स्कूलच्या वतीनं हा जो ऐतिहासिक धम्माचा सोहळा, धम्माची चळवळ गतिमान करण्यासाठी हा जो कार्यक्रम घेतला आणि या कार्यक्रमास आदरणीय भिक्खूगण, सर्व उपस्थित बंधू भगिनी, उपासक उपासिका या ठिकाणी मोठ्या संख्येने आल्या, याबद्दल मी त्या सर्वांचा अत्यंत आभारी आहे, ऋणी आहे. मित्रहो, सर्वांनी बुद्धाचं तत्वज्ञान आपल्या समोर व्यक्त केलेलं आहे. मी काय बुद्धाचा फार मोठा असा उपासक किंवा बुद्ध तत्वज्ञानी नाही, परंतु बाबासाहेब आंबेडकरांचा क्रांतीचा परिवर्तनाचा विचार, बाबासाहेबांचा स्वातंत्र्य संत बंधुत्व न्यायाचा विचार, बौद्ध धर्माची चळवळ गतिमान करण्यासाठी जे पाली आणि बुद्धिस्ट स्टडी सर्कलच्या वतीनं हा जो कार्यक्रम घेतलेला आहे, खरोखर याला अत्यंत महत्व आहे. कारण आताच्या ठिकाणी भंते विमल संगमवार, भंते ज्ञानज्योती, कुशीनगरचे भंतेजे आणि राहुल बोधे यांनी बौद्ध धर्माचं थोडक्यात सार सांगितलेलं आहे. आणि मित्र, बाबासाहेब तर म्हणायचे की बुद्ध हा धर्म नाही, बुद्ध हा धर्म नाही तर महान सामाजिक सिद्धांत आहे. आणि म्हणून मित्र, की बुद्ध धम्म ही सांगण्याची गोष्ट नाही, बुद्ध धम्म ही प्रबोधनाची गोष्ट नाही, तर बौद्ध धम्म ही आचरणाची बाब आहे. आणि म्हणूनच तथागत भगवान बुद्धाने 2500 वर्षापूर्वी जो प्रज्ञा, सी, करुणा, मैत्री हा जो विचार केला, त्याच विचारामुळे आज बाबासाहेब आंबेडकरांचा समतेचा, परिवर्तनाचा आणि लोकजागृतीचा विचार आजपर्यंत टिकून आहे. आणि म्हणून मित्र, की बुद्धासवंदितोमी, भीमासवंदितोमी, बुद्धासवंदितोमी, भीमासवंदितोमी, संघासवंदनीया, भीमासवंदितोमी. आणि म्हणूनच बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा क्रांतीचा, परिवर्तनाचा विचार आजपर्यंत टिकून आहे, जिवंत आहे. कारण भीम माझा लिहिणाऱ्यांच्या पेनात आहे. भारतातला जो बुद्ध धर्म आहे त्याला ऐतिहासिक अशी जोड आहे. आणि म्हणून भीम माझा लिहिणाऱ्याच्या पेनात आहे, भीम माझ्या लढणाऱ्यांच्या शस्त्रात आहे, भीम माझ्या बुद्ध धर्माच्या पानात आहे. आणि म्हणून बुद्ध धर्माला अत्यंत महत्व आहे. कारण की नको मजला रंग महाल, नको मजला रंग महाल, साधी झोपडीच पाहिजे. नको मजला रंग महाल, साधी झोपडीच पाहिजे. त्या झोपडीत प्रज्ञावान, शीलवान, क्रांतिकारक विचाराचे बौद्ध उपासक पाहिजे. आणि फक्त एक भाषण देतो, बाकी आता मी काही सांगत नाही. कारण इथं फार मान्यवर लोक असल्यामुळं मी काय बुद्धाचं तत्वज्ञान सांगू शकत नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी आटपलं माझं, म्हणून फक्त एक घोषणा देतो, तुम्ही फक्त यही भारत की शान है एवढंच म्हणा बस. जग में बुद्ध का नाम है, जग में बुद्ध का नाम
जय भीम जय बुद्ध नमो बुद्धाय. थँक्यू. माननीय शहासाहेब यांच्या वतीनं आलेल्या भिक्षुकांचं स्वागत करण्यात येत आहे. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी भारत दाबावे आणि त्या प्रत्येकीचं स्वागत करावं. साधू 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 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, तथागत भगवान बुद्धाचा, निळ्या ध्वजाचा जय भीम. Okay, thank you, Patrakaji, for your valuable speech with smile face. Now I kindly request Ravi Guru, the President of Luka Jana Party from Mumbai for 5 minutes. रावी गुरु को विनती करता हूँ कि मैं 5 मिनट बोलने के लिए आ जाए. भारतीय घटने शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महाकारुण्य तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्या विचारांना तीव्र अभिवादन करून आजच्या या कार्यक्रमाचे सन्माननीय भंतेगण, व्हिएतनामहून आलेले आमचे हंदीय, आमचे दुसरे भंते विमल भंते महाथेरो, या ठिकाणी ज्यांनी हा कार्यक्रम घेतला ते आमचे संगपाल भंतेजी, आमचे मुंबईचे आणि महाराष्ट्राचे आमचे भंते साधनानंद महाथेरोजी, जे आता तुमच्यासोबत सातत्याने सांगत आहेत ते आमचे भंते अनिरुद्ध भंतेजी. खरं पाहायला गेलं तर कोविडच्या काळामध्ये मुंबई शहरासारख्या ठिकाणी भंते हंदींनी जी मदत पाठवली आणि त्या मदतीनुसार तिथल्या असणाऱ्या बहुतेक भंतेजींना आम्ही त्या ठिकाणी रेशनिंग पैसे देण्याचं काम करण्याचं माध्यम साधना भंतेने आम्हाला सांगितलं आणि त्या दृष्टीने आम्ही त्या ठिकाणी करत होतो. अनिरुद्ध भंते असतील आणि महाराष्ट्रातले बऱ्याच ठिकाणी, नागपूर असेल, औरंगाबाद असेल, मुंबई असेल आणि अशा बऱ्याच ठिकाणी मास्टर हंदीने जी मदत पाठवली आणि त्या मदतीनुसार आम्ही त्या ठिकाणी सगळ्यांना नेऊन देण्याचं काम केलं. त्या करोना पिरियडमध्ये खरं पाहायला गेलं तर कोणी कुणाला मदत करत नव्हतं. मुंबईसारख्या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी आपली वस्ती आहे, त्या वस्तीच्या ठिकाणी मध्ये कोण कुणाला भेटत नव्हतं, बोलण्यासारखं काही राहिलं नव्हतं, कोण बाहेर पडत नव्हतं. अशा परिस्थितीमध्ये कुणाकडे पैसे नसताना, कुणाकडे रेशन नसताना ज्या मास्टरने आपल्याला त्या ठिकाणी जी काय मदत मिळाली, तर मी या ठिकाणी सगळ्यांना विनंती करेल, आपण त्यांचं या ठिकाणी खरोखर त्यांचं आपण स्वागत केलं पाहिजे की हा माणूस या ठिकाणी ज्यांना वाटतं की भारतामध्ये जो बुद्ध धर्म आहे त्या धर्मासाठी आपण काहीतरी योगदान दिलं पाहिजे. जी लोक बुद्ध धर्मी आहेत त्यांच्यासाठी आपण काहीतरी मदत केली पाहिजे आणि त्याच्यातलाच हा जो प्रकार होता. आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी ज्या ज्या ठिकाणी आपली लोक होती, पुण्यासारख्या ठिकाणी, इथे हितेन गरुड त्यांचे वडील महेंद्र गरुड सुद्धा आलेले आहेत, त्या सगळ्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन सगळ्या भंतेजींना आणि सगळ्या उपासकांना नेऊन देण्याचं काम केलं. मी भंते आपले आभार मानतो. मला असं वाटतं आपण त्यांचं या ठिकाणी सगळ्यांनी टाळाच्या त्यांचं स्वागत केलं पाहिजे की भंतेजींनी त्या ठिकाणी काही मला वाटतं कमीत कमी एक 15-20 लाखाच्या वरती पैसे या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी दिले आणि त्या अनुषंगाने आम्ही त्या ठिकाणी नेण्याचं काम केलं. मला त्यांनी बोलवलं. खरं पाहायला गेलं तर मुंबईसारख्या शहरांमध्ये काल 14 एप्रिल झाल्यानंतर आम्ही त्या ह्याच्यातच होतो. 6 डिसेंबर असेल, महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचं काम करत असताना तिथलं असणारे तुम्ही सगळे मुंबई शहरात येत असतात आणि तिथलं असणारं ज्या गोष्टी लागतात आपल्या लोकांसाठी त्याच्यासाठी आम्ही सातत्याने महानगरपालिका आणि राज्य शासनाकडे आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत असतो. आमचे भंते साधारणतः त्या ठिकाणी सातत्याने त्या ठिकाणी असतात. मी पुन्हा एकदा मला या ठिकाणी बोलण्यास संधी दिल्याबद्दल मी आयोजकांचा या ठिकाणी आभार मानतो आणि इथेच थांबतो. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. Thank you, Ravi Guruji. Now I kindly request Bhante Sadhananda from Assam. He is the founder of Odisha
Bodhichirya School of Assam. I kindly request to deliver your speech for 3 minutes. After that, both have thanks for Abba. मी थोडे मराठी थोडे हिंदी बोलणार. काय आता मी 22 वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये राहिलो. आता मी मराठीशी जातो. त्यागत महाकारुण्य तथागत सम्यक संबोधन बंधन करतो आणि बाबासाहेबांच्या विचारानं आज मंचावर आमचे गुरु विमल वंतेजी आणि बियन्नामची माझे कल्याण मित्र मास्टर हनबीन आणि सर्व भिक्खू संघांना मी बंधन करतो. आता टाईम पण जास्त झाला, ऊन पण जास्त. आता काय करायची, मी जास्त काय बोलणार नाही. फक्त एक गोष्ट सांगतो, हिंदीमध्ये काय म्हणतात, याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है. 1956 मध्ये नागपूर, तुम्ही आम्ही सर्व माहिती आहे. बाबासाहेबांनी दीक्षा दिल्यानंतर आम्हाला भरपूर प्रबोधन झालं. आमच्या समाजात शिक्षणामध्ये मोठे मोठे माणूस झाला, पैशावाला झाला, सामाजिक धार्मिक आर्थिक सर्व आम्हाला प्रगती झाला. मग अजून आम्ही धम्माजी बुद्ध विहार महाराष्ट्रामध्ये आम्ही प्रगती करू शकलो नाही. बाबासाहेबांचे एक विचार होते, मी धम्माची रथ इथे आणून ठेवले. कोई सारी धम्मा को यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, लेके जाना है तो अच्छा तरीका लेके जाओ, अगर लेके जा नहीं सकता है यहाँ पे रखा. तो बात करना तो बहुत इच्छा है. वो जो मास्टर हनबीन का साथ मेरा बहुत अच्छा कल्याण मित्र है. यहाँ पे जो भी थाईलैंड से हो, वियतनाम से हो, बाहर का देशों से कोई भी लोग आता है, वो लोग होटल में जाके रुकता है. होटल में एक रात रहेगा तो 5,000 भी देना पड़ता है, 10,000 भी देना पड़ता है. अगर बुद्ध विहार में रहेगा तो हम दान में ले सकता है, वो दान में दे देता है. तो मैं हनबीन बंते जी का साथ ऐसा बात किया, बात करने का वो मेरे को पूछता है, सतनानंद बंते जी क्या करूं. मैं बोला औरंगाबाद में उधर में तो जयंत चंगोपाल है, औरंगाबाद जैसा भी रवि गौरव जी है. मैं कल फोन में बोल देता हूँ. और मला जास्त इंग्लिश येत नाही, जास्त मराठी पण येत नाही, जास्त हिंदी पण येत नाही. म्हणजे मी ज्या म्हणतो खिचडी सारखे म्हणतो, मग लोकांनी समजतात. आता मी जास्त काय बोलणार नाही. धम्म तुमचा बरोबर आहे. आता तुम्ही काय करायची, प्रगती तुमच्यामध्ये आहे. आता इथे जो आम्ही बांधीजी जमलो, महाराष्ट्राची आहे, अरुणाचलची आहे, आसामची आहे, कलकत्ताची आहे, वियतनामची आहे. इथे सर्व थांबणार नाही. फक्त इथे 3 महिना थांबणार आणि धम्म प्रचार करण्यासाठी इथूनच महाराष्ट्र यवतमाळ जाणार, त्रिपुरामध्ये जाणार, आसाममध्ये जाणार, म्हणजे धम्म प्रबोधन करण्यासाठी. अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला आनंद वाटते. आज मी माझा गुरु आहे विमल बंते. मी 18 सालपासून बोधिचर्या स्कूल खेरे गाव मध्ये सुरुवात केला आणि दर नियमित बाबासाहेबांचे विचार 4 वर्षापासून बाबासाहेबांची जयंती काय मी सुरुवात करून दिली. कोणाकडे मी 1 पैसा दान मागत नाही, पण काम सुरुवात होतो. अभी भी 131 का जयंती अच्छा प्रमाण से हो गया. और बच्चा लोगों जयंती में क्या किया, 200 बच्चा लोगों को नवीन कपड़ा दान दिया हूँ. ओ मैं इसी सारे का काम करता हूँ. और भी कुछ बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा साथ कल्याण मित्र बंती जी है, और जो यहाँ पे जो बेटा है इंदवंश बंती जी, वो विद्वान आदमी है. मैं उनको, हम मुंबई से काफी सालों से हम एक दूसरे को जान पहचान है. भगवान बुद्ध का एक वचन ऐसा है कि बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, तीन रत्न, ये त्रिरत्न आप लोगों का सामने है. इसको लेने के लिए पैसा का जरूरत नहीं है, श्रद्धा का जरूरत है. श्रद्धा से आप लोग ले सकता है. टाइम भी बहुत है, जास्त काय बोलणार नाही. मला ओरेमध्ये आनंद वाटतो. मी इथे 3-4 दिवस झाला दर सकाळी इथे उपासक उपासिका येऊन ध्यान साधना करतात. ते चांगलंच.
एग्जाम्पल उदाहरण तुमच्या घरीमध्ये एक आंबाचं झाड आहे, एक उदाहरण कधी आम देत नाही, फक्त पान देतात और घर का कचरा करता है, रोज सुबह शाम कचरा कर देता है पान गिर के, बाद में क्या करेंगे? मालिक को परेशानी आ जाएगा, ये इतना आम का जार में पानी देने का बाद भी फल नहीं आता है। अभी बुद्ध विहार में, यहाँ में जो धम्म सागर बुद्ध विहार, यहाँ में कमेटी लोगों का साथ, यहाँ पे इतना आजू बाजू का लोग, इधर कम से कम हर पूर्णिमा में लोग आना मांगता है, कम से कम एक घंटा के लिए तो आ जाओ। इसलिए शुरुआत किया है बाबा साहब का विचार, याद है जो आबाद है भूल गया तो प्रभात है। बाबा साहब का विचार को आप लोग भूल जाएंगे तो गलत रास्ते पर जाएंगे आप। कैसा कल मुझे अच्छा लगा, एक ही लड़की है, वो कल आया मिलने के लिए, जो यहाँ पे दफ्तर पर रहना, माँ ने उनको दफ्तर बनाया है, पिताजी ने उनको दफ्तर, और ये बुद्ध का शिक्षा है। हर घर के अगर बड़ा बड़ा ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर, तो हमारा आनंद वाटतो हो, आमचे एक उपासक आईपीएस ऑफिसर झाला। और जब एक आदमी देखेंगे दारू पी के एकदम सो रहा है, कौन है? जब भी मला शर्म आता है। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बुद्ध विहार का कमेटी का साथ हम लोग हैं, और ये भी एक बात बता के देता हूँ, अगर मैंने गलत की है, गलत करता हूँ, मेरा कम एग्जाम्पल में उदाहरण देता हूँ, मैं चंगोपाल पकड़ लो, मेरा गलत रास्ता पर हूँ, आप लोगों को नजर में आएगा ना। मेरे पास 2 आंख है, आपको देखने के लिए लाखों आंख है, हमको देखने के लिए वो अच्छा काम कर रहा है। कभी कभी भिक्षु का नीति को भी उपासक उपासिका लोगों को फॉलो करना चाहिए। जब वंदना का टाइम होता है, ध्यान करने का टाइम पे घड़ी घड़ी बजाएगा तो बंते जी दरवाजा खुला, बंते जी दरवाजा खुला, काय करायचं? तो ये वो उपासक उपासिका लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ते हान दिन बंते जी तुमचा पाठीमागे उभा आहे, आम्ही आहे, ते इथे काय काम झाला मी सांगतो त्याला, किधर किधर मदद करना है तो कर। मैं उनसे से आज तक एक कोरी भी नहीं मांगा हूँ, इसमें मेरा पास पैसा नहीं है, मैं खाली बोला प्लेन का टिकट मुझको दो तब आप आऊंगा औरंगाबाद, नहीं तो नहीं। मैं सीधा बोल दिया, मैं किसी से ऐसा पैसा भी नहीं मांगता हूँ, दो मुझको ये कर रहा हूँ, ते कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं मांगता हूँ। यहाँ पे 20-22 बरस से मुझको जान पहचान है मुंबई में, कभी किसी को आज तक नहीं बोला, लेकिन खाने के लिए जरूर मांगता हूँ, क्योंकि जंगल का हाथी का भी खाने को नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा, और हम भी तगड़ा खाना नहीं खाएगा तो कैसे दम्म प्रचार करेगा। तो मैं इसी सारी का तो सभी दम्म प्राण उपासक उपासिका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे भिक्षु संघ को देख के मुझको बहुत आनंद होता है। 20 बरस का पहला मैं जब अजंता एलोरा आया था, बांती जी इधर मिलना हो एक विशुद्धानंद है, उनको भी इतना बिजी है क्योंकि बांती जी कमी है ना, उस वक्त बुद्धिबल बांते थाईलैंड में है, सत्यबल बांते बिजी है, बहुत कमी है। तो आज गर्व से बोलना आता है कि हम बाबा साहब का विचार को धीरे धीरे प्रचार कर पा रहा है। जैसे यहाँ पे भिक्षुनी लोगों को देखने का बाद भी मन में बहुत सुकून मिलता है, चलो हमारा जो मेहनत को धीरे धीरे सक्सेस हो रहा है। तो ये आप लोगों का सहयोग है, और सबको विनती है रोज रोज मत आओ। एग्जाम्पल आप लोगों को काम है, अरे 365 दिन में 12 पूर्णिमा आता है, उस 12 पूर्णिमा का दिन पे एक दिन आके पाली शिको ना। बुद्धंग शरणं गच्छामि म्हणजे काय? पाली मध्ये आम्ही बुद्धांग नामानं म्हणतो, कानाला आम्ही प्रणाम करतो, ते अर्थ तो तुम्ही कितीतरी तुम्ही वर्ष होऊ दे ना। पाली आणि मराठी तुम्ही समजणार, ते तुम्ही हळू आता जो बंधूंनी सांगितलं ना 21 दिवसात पाली सांगितलं, ते प्रयत्न करा। अभी आप लोग एक दूसरे को आके ध्यान करो, ध्यान करके वंदना करके बंदी जी को भी लगेगा चलो अभी का धम्म का जगह पे धम्म का फल आना शुरू हुआ है। नहीं तो वो अम्बा का जार कहाँ से जाओगा, खाली पान गिरता है, खाली पान गिरता है और सफाई को फल लेते हैं। अभी जो कमेटी लोग रोज रोज आता है, मुझको बहुत अच्छा लगता है। सुबह शाम को महिला मंडल आता है, जय भीम। और ये बंती जी को, हंदन बंती जी को जय भीम का किसने सिखाया? मैंने सिखाया हूँ। आज इतना सुंदर करके जय भीम बोला है, मुझको बहुत अच्छा लगा है। और रोबी का उधर में भी हमने लिख के सिखा दिया, ऐसे बोलो, नहीं तो वो बोलता है नमस्ते।
धन्यवाद आप लोगों को सहयोग के लिए, कमेटी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले और भी कार्यक्रम आएंगे तो आने वाला काल पे या तो 1 वर्ष का बाद 6 महीने का बाद ये मैदान मधुमाखी का जैसा भरपूर होले पाहिजे आम्ही प्रयत्न करतो, तुम्ही प्रयत्न करा। सर्वांना जय भीम आणि मंगल मैत्री। मी इथे थांबतो। ओके, सिर्फ पास में हाथ जोड़ के रखो, हाँ पास में। I will give both thanks and और आभार में दूंगा। Homage to Tribal Gems and Upasak Upasika. I highly appreciate and thanks Bante Bimal, the founders of Bodhisar School, Kolkata, who attend these programs. I also thanks and big, I don't know how to thanks, a big thank you to Master Hadis from Vietnam who sponsored this program, and his followers also big thank you and blessing from Indian Bhikkhu Sangha. You are blessing from Indian Bhikkhu Sangha, and also I thanks to all the Bhikkhu Sangha who attend this program and Upasak Upasika who attend this program। सबको मैं आभार करता हूँ। अभी आप लोग सब लोग 3 बार साथ बोलो। अभी शरणार्थी गाथा बोलेंगे। हाँ, नाथी में शरणागत बुद्धं शरणं वरं हेतेन सज्जवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। नाथी में शरणागत धम्मो में शरणं वरं हेतेन सज्जवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। नाथी में शरणं आयं संगो में शरणं वरं एतेन सज्जवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। जय भीम। Okay, go after lunch. भोजन तैयारी है, भोजन खाकर जाए, खाना खाकर जाओ। Okay, once again thank you for thank you for your cooperation। प्रोग्राम खत्म हो गया अभी, end of the program। First the Bhikkhu Sangha will take lunch। after you take lunch, Bhikkhu Sangha भोजन करेगा। आप लोग का भी भोजन की तैयारी है यहाँ पर। Namo Sakyamuni Buddha. Our Sankarana will be start soon. Please, we give salad. We give salad. Namo Sakyamuni Buddha, be the most venerable
Master Bimon, here are the most almost venerable Bhikkhu Sangha. Today, in 20 April 2020, at the Dhammasaraya Buddha Vihara, on occasion of the opening ceremony, Buddhist primary class for the monks and novices. So I, on behalf of the Vietnamese people in Vietnam and Vietnamese people overseas, we have a small donation to offer to honor you, and we pray Buddha blessing all of you have good health, good luck, good practice, and all of you become enlightenment one so soon as possible. Sadhu, sadhu. मैं सभी भिक्षु संघ को बहुत बहुत आभारी हूँ, संघ को प्रणाम। तो अभी हम लोग सभी थोड़ा सा ब्लेसिंग कामना करेंगे, आशीर्वाद कामना करेंगे। Virat
आकाशाचा भूमता देवनागमहिन्दिका पूयन्तम् अनुमोदित्वा चिररक्षमुज्जिनोदे शरणम् आकाशाचा भूमता देवनागमहिन्दिका पूयन्तम् अनुमोदित्वा चिररक्षमुज्जिनोदे शरणम् Lift, okay. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Hey, sit down. बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।